Hello students, I am Monica Malhotra, PGT Biology, KV Push Vihar, New Delhi. I welcome you all in my first online live session on Facebook for class 12th biology. All the class 12 biology students are welcomed here in this session today. I am going to teach chapter number 3, Human Reproduction, part 1. So in the earlier sessions, you have studied chapter 1 and chapter 2. Chapter 2 which included sexual reproduction in flowering plants. And today we are going to study the same sexual reproduction in human beings. Okay, as you know, human beings, they are sexually reproducing and viviparous organisms. What do we mean by viviparous organisms? Viviparous means which can give birth to the young ones. So we are viviparous animals who give birth to the young ones. Now the whole events of the life cycle of a human being can be traced into 3 parts. As you studied in first chapter, the life cycle of an organism involves 3 phases: pre-fertilization events, fertilization event, and the post-fertilization events. So I will summarize the whole thing in these 3 phases. First is pre-fertilization events. Hello everyone, I think everyone has joined. Yes, pre-fertilization events, it includes formation of gametes, as you have studied in first chapter. Pre-fertilization, fertilization से पहले के events, उसमें क्या क्या आता है? पहला gametes का बनना, दूसरा gametes का transfer होना. So formation of gametes and transfer of gametes. Formation of gametes is also called gametogenesis. Okay, तो gametogenesis होता है और फिर क्या होता है? Transfer of gametes होता है. These 2 events occur in pre-fertilization events. Then after that occurs fertilization. The next is fertilization events. Fertilization events में क्या होगा? Male and female gametes will fuse together to fertilize each other, and that will give rise to zygote. Zygote, which is a unicellular diploid cell. Okay? अब जब एक बार जाइगोट बन गया तो जाइगोट बनने के बाद जाइगोट की डेवलपमेंट होगी और नेक्स्ट फेज शुरू हो जाएगा, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होगा? वो जाइगोट का डेवलपमेंट होगा. अभी मैंने बताया कि जाइगोट एक डिप्लॉयड सेल है, ठीक है. ऑफ कोर्स ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो डिप्लॉयड, ठीक है. तो अब डिप्लॉयड जाइगोट से जो यूनिसेल्युलर नेचर का है उससे मल्टी सेल्युलर ह्यूमन बीइंग कैसे बनता है? बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन. And I think you all can guess which type of cell division will occur, which will not change the chromosomal number. एक डिप्लॉयड जाइगोट से मल्टीसेल्युलर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए जो सेल डिवीजन होती है, दैट इज माइटोसिस. ओके, एंड इन बायोलॉजिकल टर्म्स वी कॉल इट क्लीवेज. ओके, तो यूनिसेल्युलर डिप्लॉयड जाइगोट अंडरगोज क्लीवेज. सिंगल सेल जाइगोट में क्लीवेज होती है, वो सिंगल सेल डिवाइड करके 2 सेल्स बना देता है, 2 सेल्स डिवाइड करके 4 बनाते हैं, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से ये डिवीजन चलता रहता है. और इससे जो इनिशियल एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज कॉल्ड मॉरुला. वो सब हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ. फिर उससे ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला के बाद फिर ऑर्गन्स बनने शुरू होते हैं उसमें, ठीक है. और धीरे धीरे ये जो एम्ब्रियो है ब्लास्टुला की स्टेज में ये इम्प्लांट हो जाता है. कहाँ? यूट्रस में. यूट्रस में फर्दर डेवलपमेंट होगी एम्ब्रियो की, तो ब्लास्टुला स्टेज इम्प्लांट हो जाएगी, अटैच हो जाएगी जाके यूट्रस की इनर वॉल के साथ. दिस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन लोअर क्लासेस आल्सो अबाउट इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन मतलब एम्ब्रियो का यूट्रस की इनर लाइनिंग, इनर वॉल के साथ जाके इम्प्लांट हो जाना. इनर वॉल कौन सी है? एंडोमेट्रियम, ठीक है. ओके, तो अब इसके बाद एक बार इम्प्लांटेशन हो गई, तो इम्प्लांटेशन के बाद जब तक वो फर्दर डेवलप होगा, फर्टिलाइजेशन से लेकर फुल टर्म यंग वन बनने तक जो डेवलपमेंट होती है, दैट इज अंडर द पीरियड कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड. गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होगा एंड फाइनली पार्चुरेशन विल अकर. ओके, तो पार्चुरेशन मीन्स अ चाइल्ड बर्थ. तो दिस इज अबाउट द इनिशियल थिंग.
After this brief introduction, I will come to the first slide. We'll study about the male reproductive system. Okay, so in this chapter, we'll study in detail about the male reproductive system, female reproductive system, the menstrual cycle, the development of the embryo, and how the full-term young one is produced and delivered. Right? Now, one thing is worth mentioning here, that in case of human beings, Homo sapiens, the male organism forms the male gametes, that is the sperms. And the formation of sperm starts from the puberty of the human male and keeps on occurring till the old age of the human male. But the formation of ovum in the female human being, female organism, it starts at puberty, but it ends at a stage called menopause. Okay, so around 50 years of age, menopause occurs when the process of formation of egg or the female gamete ceases, it stops. So after having this background, we'll start with the detail of the male and female reproductive systems. Okay, so I'm not seeing much students have joined in. Please call up your friends and tell them to join the session. This is a very important chapter. Mostly it contains 3 mark, 2 mark and 5 mark questions in your board examination. So it is very important for the purpose of your board examination also. Okay. Now, male reproductive system, we are going to start with. The male reproductive system is located in the pelvis region. Okay. So in the body, the pelvic region, it consists of the male reproductive system in human beings. क्या क्या components है male reproductive system के? तो reproductive system जब भी हम पढ़ेंगे उसमें 3 major उसके components पढ़ेंगे हम. पहला, the chief reproductive organ, जो सबसे important reproductive organ है, यानी कि the gonad. It is called gonad, G-O-N-A-D, gonad. In case of human males, there is a pair of gonads called testes. तो सबसे पहला important component male reproductive system का क्या है? Gonads. That is the chief reproductive organ. That is a pair of testes. Second number पे आती हैं accessory ducts. वो सारी ducts जो कि male gametes को transport करने में help करती हैं. These are called accessory ducts. Then comes the glands. Third number पे आते हैं accessory glands. So these are the accessory reproductive glands which help in the process of reproduction. And finally, it is the external genitalia. External genitalia are those genital organs which help in the process of transfer of gametes from the male organism to female. So they help in copulation. So I've given you a term, copulation. C-O-P-U-L-A-T-I-O-N, copulation. What is copulation? The act of the transfer of male gametes in the female reproductive tract is called copulation. You know, human beings, they are not only viviparous, but they also have internal fertilization. इनमें internal fertilization होती है और internal fertilization होने के लिए जो male gametes हैं उनको female reproductive tract में insert किया जाता है so that fertilization can occur in the female organism. Okay, now the testes, the chief reproductive organ, where they are situated? They are situated outside the abdominal cavity. Okay, pelvis region में तो है लेकिन abdominal cavity से बाहर situated होती हैं testes. And they are enclosed in sac-like structure called scrotum. Okay, अब scrotum में testes के lodged होने का बहुत important reason है. Reason क्या है? The normal human body temperature is 37 degree, right? But the scrotum in which the testes are enclosed, they help in maintaining the low temperature of the testes around 2 to 2.5 degree lower than the normal body temperature. Okay. Why this lower body temperature is required for the testes? It is required for the process of spermatogenesis. What is spermatogenesis? Spermatogenesis is the process by which sperms are formed in the testes. Sperms, which are the male gametes, they are formed in the testes by the process called spermatogenesis. I had earlier referred the term gametogenesis. Gametogenesis मतलब gametes का genesis, gametes का synthesis. और gametes दो type के होते हैं, male gamete and female gamete.
Male gametes are sperms and female gametes are egg or the ovum, right? तो मेल गेमीट्स या स्पर्म्स के सिंथेसिस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं और फीमेल गेमीट्स या ओवम के सिंथेसिस को oogenesis कहते हैं, राइट? तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस करने के लिए टेस्टिस को लोअर टेम्परेचर चाहिए, 2 to 2.5 डिग्री लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। और ये लोअर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो टेस्टिस हैं दे आर लॉज्ड इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या शुरू से ही राइट फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो जब टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है एक एम्ब्रियो में, क्या तभी ये स्क्रोटम में प्रेजेंट होती है? नो। इन अ बेबी बॉय जब डेवलपमेंट हो रहा है उसका एम्ब्रियोनिक स्टेज पे है वो, बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी बॉय द टेस्टिस आर इनिशियली फॉर्म्ड इन द एब्डोमिनल कैविटी। पहले वो एब्डोमिन में डेवलप होती है। अ पेयर ऑफ टेस्टिस आर डेवलप्ड इन द एब्डोमिन, but before the birth of the baby, a few weeks before the birth of the baby, the testes they descend, they come down from the abdominal cavity till the scrotum, till the scrotal sac. वहां से मूवमेंट करके वो स्क्रोटम तक डिसेंड हो जाती हैं, वहां तक मूवमेंट कर लेती हैं और स्क्रोटम में डिसेंड हो जाती हैं। बहुत जरूरी है डिसेंड होना ताकि नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस उस ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन बीइंग में चल सके आफ्टर द बर्थ। Okay, of course spermatogenesis starts after puberty, but the testes descend into scrotum before the birth of the child. Okay, then male reproductive system. Okay, here I would also like to refer if the testes by chance fail to descend from the abdominal cavity till the scrotal sac, scrotum tak wo descend nahi ho pati, you know there is a canal through which it is descending. एब्डोमेन से लेकर स्क्रोटम तक डिसेंड करने के लिए वो एक पाथ फॉलो करती है टेस्टिस। दैट पाथ इज थ्रू अ कैनाल, इंग्विनल कैनाल, INGUINAL, इंग्विनल कैनाल। तो अगर ये इंग्विनल कैनाल ऑब्स्ट्रक्टेड है या इसमें कुछ डिफॉर्मिटी है तो हो सकता है कि ये टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन से डिसेंड करके कभी स्क्रोटम तक पहुंचे ही ना बिफोर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। तो ऐसे में क्या होगा? सच अ चाइल्ड विल नॉट बी एबल टू undergo spermatogenesis after reaching puberty. Okay, and such an individual will be sterile, non-reproductive. Okay, the reproductive or viable male gametes will not be formed in such an individual. So now you understand what is the importance of testes being lodged in scrotum, because there the lower temperature is provided for the process of spermatogenesis. Okay, so after this description, now we come to the details of the male reproductive system. So in the male reproductive system, see, this is a very easy diagram. The diagrams which are given in your book, they are quite tough to draw. This is a diagram which you can easily and neatly draw. Okay, so I think you should practice the same diagram because it may be asked in the 5-mark question or separately in a 3-mark question in your board exam, right? So I just told you that in the male reproductive system there are 3 important parts. First is the chief reproductive organ or the gonads. There is a pair of gonads called testes. So here is the location of testes. Okay, you can see this is the location of testes. Then I told you next is the ducts, the accessory ducts. So accessory ducts are present within this testis, and the last duct, the most important duct, you can see this epididymis and the vas deferens. The whole duct system we are going to study ahead in detail. Okay, so after this duct system, accessory ducts, the third important component is the accessory reproductive glands. So how many different glands are present in male reproductive system? One is these a pair of, you can see, seminal vesicles. See, the labeling is there, seminal vesicles. So a pair of seminal vesicles are there. Then a single median location, देख रहे हैं बीच में, middle में है ये, prostate gland, which is a single gland, it is unpaired. And third accessory gland is again a pair of bulbourethral glands. Can you see these bulbourethral glands? So 3 types of accessory glands are there: seminal vesicles, prostate gland, and bulbourethral gland. Excuse me. So after these 3, next is the external genitalia. 4 components पढ़े थे हमने. पहला component, the chief reproductive organ, testis. Then accessory ducts,
जो टेस्टिस में है उनका पूरा नेटवर्क समझाऊंगी मैं अभी आपको। जो यहाँ दिखाई दे रही है वो है एपिडिडमिस, वास डिफरेंस। एंड थर्ड इज द accessory glands, seminal vesicle, prostate and bulbourethral gland. Lastly, it is the external genitalia. Now, external genitalia में क्या क्या आता है? This is the penis. Penis में आप ये देख सकते हैं the terminal end glans penis, and there is a loose fold of skin over it which envelops it, surrounds it. It is called foreskin. So this is called external genitalia, which helps in the process of copulation. Okay, so we'll see the detail of this diagram. Testis. From the testis, you can see there is a cylindrical structure at one end of the testis. Epididymis, इसे कहते हैं epididymis. Epididymis का ये head region है, ये इसकी body है और ये इसका tail region है. Tail region से originate होता है ये एक लंबा सा duct जिसे क्या बोलते हैं vas deferens. Okay, vasa differentia भी कहते हैं, vas deferens भी कहते हैं. देखिए यहाँ से vas deferens start हुआ और ऊपर की तरफ it is moving upward towards the urinary bladder. What is this? This is the urinary bladder, which comes under excretory system. These are the two ureters जो यूरिन को लेकर आते हैं नीचे और ब्लैडर में ये यूरिन जो है स्टोर हो जाता है. Now this urine, this excretory system you have studied before. आपने क्लास 11 में भी पढ़ा है कि यहाँ ऊपर किडनीज होती हैं. किडनी से लेफ्ट किडनी से लेफ्ट यूरेटर, राइट किडनी से राइट यूरेटर स्टार्ट होगा. Ureter will bring the urine in the urinary bladder. From the bladder, this urine will be transported out. It will be given out through a duct called urethra. Okay, so ये तो excretory system है. It is linked with the reproductive system in human males, right? तो आप ये देख सकते हैं यहाँ testis जिसमें sperms का formation होता है. Sperms जब spermatozoa बन जाते हैं तो मूवमेंट कर सकते हैं, तो वहां से ये एपिडिडिमिस में ट्रांसफर हो गए. ट्रांसफर होने के बाद ये वास डिफरेंस में ट्रांसफर हो गए. ट्रांसफर होने के बाद फाइनली ये ऊपर की तरफ वास डिफरेंस जा रही है. यूरेटर के पीछे से घूमती हुई ये वास डिफरेंस यहाँ आ गई, राइट. एंड यू कैन सी देन इट, ये सेमिनल वेसिकल एक्सेसरी ग्लैंड्स है, ये अपना सिक्रीशन वास डिफरेंस में डाल रहे हैं, राइट. प्रोस्टेट ग्लैंड ये भी अपना सिक्रीशन वास डिफरेंस में डाल रहा है, राइट. देन bulbourethral glands also put their secretion in the duct. And finally, ये तीनों glands का secretion जब vas deferens के secretion के साथ mix हो जाता है तो ये आगे एक common duct में चला जाता है. ये common duct असल में urethra है, लेकिन urethra तो urine को carry करने के लिए थी. अब इसमें genital fluid भी contain हो रहा है, ठीक है. The semen along with the sperms along with the secretion of seminal vesicles, prostate gland and this bulbourethral gland, they are mixed into the sperms brought by vas deferens. So all this mixture together is transported to this common duct, which is now called common ejaculatory duct. So this common ejaculatory duct takes away the whole fluid, the whole secretion outside through this male gonopore, male genital aperture, right, through the penis. So this is the diagram. Now we'll see what all is shown in this diagram. Male reproductive system. Now I hope it is clear to you. इसमें आपको male gonads दिखा रहे हैं, testis एक पेयर है. testis से sperms form होके epididymis में जाते हैं, वहां से vas deferens में जाते हैं. vas deferens से sperms carry हो रहे हैं आगे. जो vas deferens का secretion है जिसमें mainly sperms है, उसमें seminal वेसिकल का सिक्रीशन भी ऐड हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन भी ऐड हो गया और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन भी ऐड हो गया. और ये टोटल सिक्रीशन अब स्पर्म्स के साथ मिलकर कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट से आउट हो रहा है एंड इट इज गिवन आउट. ओके, दिस इज कॉल्ड द इजैकुलेशन ऑफ द सेमिनल प्लाज्मा और द स्पर्म्स, राइट. नेक्स्ट वी कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस. नाउ वी विल इन डिटेल सी हाउ द स्पर्म्स आर फॉर्म्ड इन द testis. कैसे sperms testis में form होते हैं of the seminal plasma or the sperms. Okay. Now we come to the structure of testis. In adults, each testis is oval in shape with a length of about 4 to 5 centimeters. तो आप देख सकते हैं इसकी जो लेंथ है ये 4 to 5 सेंटीमीटर है. आपको याद रखना पड़ेगा ये डायमेंशन.
और जो विड्थ है इसकी ऑलमोस्ट 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है, राइट। टेस्टिस को एनक्लोज करने के लिए एक कैप्सूल होता है, एंड दिस कैप्सूल is a dense covering which is for the protection of testis. अब इस dense covering में mainly आप देख सकते हैं दो पार्ट्स हैं इसके। इस लेयर को क्या बोलते हैं? tunica. This layer is called tunica. Okay. So this outer layer of tunica is called, tunica मतलब layer. Outer layer is tunica vaginalis. और जो अंदर की लेयर है ये, इसे बोलते हैं tunica albuginea. तो टेस्टिस का इमीडिएट कोट क्या है? दैट इज tunica albuginea. और उसके बाहर एक और कोट है, दैट इज tunica vaginalis. एक्चुअली जो tunica vaginalis है ये पेरिटोनियल लाइनिंग है, राइट और इसके अंदर की लाइनिंग जो बिल्कुल टेस्टिस को टच कर रही है, टेस्टिस को एनक्लोज कर रही है, दैट इज tunica albuginea. ओके, सो दीज टू लेयर्स फॉर्म द आउटर dense covering of the testis. Now each testis has almost 250 compartments. आप ये देख सकते हैं टेस्टिस का ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन शो किया हुआ है. इसमें ये देखो कितने सारे सेप्टा है, पार्टीशंस है, लिखा है सेप्टम ऑफ टेस्टिस. ये पार्टीशंस है इसके, ठीक है. और ये पार्टीशंस की वजह से टेस्टिस बहुत सारे चैम्बर्स में बट गई है. ये कितने ऑलमोस्ट कितने चैम्बर्स होंगे? ऑलमोस्ट 250 चैम्बर्स, 250 कंपार्टमेंट्स. एक टेस्टिस में, एडल्ट टेस्टिस में ऑलमोस्ट 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिन्हें बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. देख सकते हैं आप, लेबलिंग है ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. इट हैज नॉट बीन लेबल्ड हियर. तो ये मैं बता रही हूँ, ये देखिए जिसको मैं लिमिट कर रही हूँ, ये सेप्टम, एक सेप्टम और दूसरे सेप्टम के बीच में जितनी भी जगह है दैट इज अ टेस्टिकुलर लोब्यूल. ये एक सेप्टम है और ये दूसरा सेप्टम है, इसके बीच में ये पूरा क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल. ठीक है. तो जितने भी चैम्बर्स हैं टेस्टिस के जो सेप्टम से बट गए हैं, उन्हें हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं. ठीक है. अब ये लोब्यूल में क्या है? हर एक लोब्यूल के अंदर एक, दो या तीन हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है. ठीक है. आप देख सकते हैं यहाँ आपको एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिख रही है, यहाँ दो दिख रही है, तीन भी हो सकती है. तो एक, दो या तीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन लोब्यूल्स के अंदर पाई जाती है. ठीक है. हर एक लोब्यूल में एक से तीन तक बहुत ही कॉइल्ड, देख रहे हैं कॉइल्स हैं इन पे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है. और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या है? ये वो ट्यूब्यूल्स है जिनमें जर्मिनल एपिथेलियम होती है. हमने पढ़ा है जर्मिनल एपिथेलियम एक ऐसी एपिथेलियम है जो जर्म सेल्स फॉर्म करती है. ठीक है. जर्म सेल्स यानी कि गेमीट्स. और यहाँ हम कौन से गेमीट्स की बात करें? स्पर्म्स. यानी कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है दे फॉर्म द स्पर्म्स. Now this is the longitudinal testis section of testis in detail. You can see here, ये है आउटर कैप्सूल टेस्टिस का. देखिए इसमें सबसे बाहर की लेयर जो है पेराइटल लेयर है. ठीक है. पेराइटल लेयर और उसके अंदर विजिरल लेयर है, राइट. ये क्या कहलाती है? ट्यूनिका वेजिनालिस, राइट. बाहर की लेयर पेराइटल, अंदर की विजिरल और बीच में कैविटी है. it is to provide the cushion. ठीक है. और जो टेस्टिस के इमीडिएटली पास में होती है उसे बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, राइट. अब कैप्सूल है टेस्टिस का ये पूरा, राइट. अब इसमें आप देख सकते हैं ये सेप्टा है, ये ब्लू कलर के जो है सेप्टा है. तो इस टेस्टिस को ये सेप्टा कितने सारे कंपार्टमेंट्स में बांट रहे हैं, राइट. यहाँ पे आपको बहुत कम कंपार्टमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, पर अभी हमने पढ़ा ये ऑलमोस्ट 250 होते हैं. अ सिंगल टेस्टिस हैज ऑलमोस्ट 250 सच कंपार्टमेंट्स. हर एक कंपार्टमेंट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल. हर एक लोब्यूल के अंदर आप देख सकते हो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं. दीज आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर की जो लाइनिंग होती है, ये लाइनिंग, दिस इज जर्मिनल एपिथेलियम. ओके. और जर्मिनल एपिथेलियम के जो सेल्स हैं दे अंडरगो मियोसिस. और मियोसिस अंडरगो करके वो क्या बनाते हैं? दे फॉर्म गैमीट्स. और ये गैमीट्स बनने के प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस. यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ही वो स्ट्रक्चर है, यही वो ट्यूब्यूल्स है जिनके अंदर जर्मिनल एपिथेलियम होती है. वो जर्मिनल एपिथेलियम जिसके हर एक सेल में स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस चलता है और स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है. तो अगर आपको कोई ये पूछे वेयर स्पर्म्स आर फॉर्म्ड इन द ह्यूमन मेल्स, तो आप बोलोगे स्पर्म्स आर फॉर्म्ड इन द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन ह्यूमन टेस्टिस. ठीक है. स्पर्म्स कहाँ बनते हैं? इन द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ ह्यूमन टेस्टिस, राइट.
अब जब एक बार यहाँ स्पर्म्स बन जाते हैं तो बनने के बाद वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। सेमिनिफेरस में बने हुए स्पर्म्स यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके कहाँ जाएंगे, दे विल गो टू दिस नेटवर्क। देख रहे हैं आप, ये पूरा नेटवर्क है, ये नेटवर्क में जाएंगे और ये नेटवर्क क्या है, दिस नेटवर्क इज ऑफ वेरी स्मॉल कैपिलरीज, छोटे छोटे कैपिलरीज का नेटवर्क है, इन्हें बोलते हैं रेटी टेस्टिस। ओके, सो रेटी टेस्टिस छोटी छोटी कैपिलरीज है, यहाँ जैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म्स बनते हैं, स्पर्मेटोजुआ बनते हैं, दे आर ट्रांसपोर्टेड टू रेटी टेस्टिस। ओके, रेटी टेस्टिस से ये स्पर्मेटोजुआ फर्दर ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू दीज स्मॉल ट्यूब्यूल्स, ये ट्यूब्यूल्स कहलाती हैं वासा एफ्रेंशिया या इफ्रेन डक्ट्स, ठीक है। वास एफ्रेंस कहते हैं या वासा एफ्रेंशिया। ओके, ये वासा एफ्रेंशिया स्पर्म्स को कैरी करके कहां लेकर जाती है, टू द एपिडिडमिस। एपिडिडमिस का देखिए हेड है, तो वासा एफ्रेंशिया स्पर्म्स को कहां छोड़ती है, इन द हेड ऑफ द एपिडिडमिस। हेड से ये जाते हैं इन द बॉडी ऑफ एपिडिडमिस, बॉडी से जाते हैं टेल ऑफ द एपिडिडमिस, राइट। हेड इज कॉल्ड केपर्ट एपिडिडमिस एंड टेल इज कॉल्ड कॉर्डा एपिडिडमिस। CAPUT केपर्ट, ये इसका हेड का टेक्निकल टर्म है, CAUDA कॉर्डा ये टेल का टेक्निकल टर्म है। तो पहले वासा एफ्रेंशिया स्पर्म्स को कैरी करके कहां ले जाएंगे, इन द हेड ऑफ द एपिडर्मिस, केपर्ट एपिडर्मिस, देन बॉडी ऑफ द एपिडर्मिस, देन कॉर्डा और द टेल ऑफ द एपिडर्मिस, एंड फाइनली इट विल बी ट्रांसपोर्टेड। देखिए इस टेस्टिस के पीछे से जा रही है ये ट्यूब्यूल, ठीक है, आपको ऊपर जाती हुई नजर आ रही है, ये इसके पीछे से जा रही है। So tail of epididymis transports the sperms into vas deferens. Vas deferens takes it upwards towards the bladder, क्योंकि ब्लैडर के ऊपर से घूमते हुए ये vas deferens ने कॉमन एजैकुलेटरी डक्ट में स्पर्म्स को कैरी करना है, ठीक है। अभी हमने ये देखा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, राइट। तो अभी देखिए, अब आपको ये समझ में आ गया सारा, vas deferens तक द स्टोरी इज क्लियर। ये सारी क्या कहलाती हैं, दीज आर कॉल्ड असेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स। अब हम ये असेसरी डक्ट्स का सीक्वेंस स्टडी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले जर्मिनल एपिथेलियम तो पाई जाती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, तो स्पर्मेटोजेनेसिस तो यही होगा, राइट। यहाँ स्पर्म्स के फॉर्मेशन के बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वो स्पर्म्स ट्रांसफर होंगे इनटू रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस से वो ट्रांसपोर्ट होंगे वासा एफ्रेंशिया, वासा एफ्रेंशिया से जाएंगे एपिडिडमिस, एपिडिडमिस से जाएंगे vas deferens, and of course vas deferens से finally कहाँ जाएंगे, in the common ejaculatory duct, which should be called common ejaculatory duct, but in some books it is also referred as urethra, ठीक है। Okay, so this is a sequence of the accessory ducts which will carry the sperms from seminiferous tubules to common ejaculatory duct. अब हम सबसे पहले ये देखें कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपको यहाँ पे ये लॉन्ग थ्रेड लाइक चैनल्स की फॉर्म में दिखाई दे रही हैं, असल में इनका स्ट्रक्चर होता कैसा है। इनका स्ट्रक्चर जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका ट्रांसफर सेक्शन देखना पड़ेगा। आप अभी क्या शो, डायग्राम क्या शो कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन मतलब वर्टिकल सेक्शन। अब हम इसका एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का हॉरिजॉन्टल सेक्शन, ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे, वो ऐसा दिखाई देगा। स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, देखिए ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये दूसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये तीसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये चौथी, ये इसका सिर्फ आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं सबसे पहले ये क्या है, सबसे बाहर अभी बताया था मैंने आपको, टेस्टिस के सबसे बाहर वाले कैप्सूल की लेयर विजरल पेरिटोनियम कहलाती है, उसके अंदर होती है ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है ब्लड सप्लाई करने के लिए, ठीक है। दिस सर्कल इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में सबसे पहले आप देख सकते हैं ये बाहर इसके एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है, ठीक है। इस मेम्ब्रेन के बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये लेयर सेल्स की, ठीक है, ये फर्स्ट लेयर सेल्स की क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम, दिस इज कॉल्ड द जर्मिनल एपिथेलियम। ओके, ये जर्मिनल एपिथेलियम देख रहे हैं आप, सिंगल सेल्ड लेयर है, ठीक है। इसमें आप कुछ लंबे लंबे पिरामिडल शेप सेल्स देख रहे हैं, पिरामिड शेप, देखिए यहाँ बहुत क्लियर है पिरामिड शेप, ये इसका बेस है और ये पिरामिड शेप है। These pyramid shaped cells, they are called Sertoli cells. Sertoli cells are also called nourishing cells. काम क्या इनका, नरिशमेंट प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, किसको, टू द डेवलपमेंट स्पर्मेटोजुआ, जो स्पर्म्स डेवलप हो रहे हैं, वेरियस स्टेजेस में है स्पर्म्स, उनको ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए एनर्जी चाहिए,
वो एनर्जी के लिए कौन एनर्जी प्रोवाइड करता है? सर्टोली सेल्स. दे प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजोआ. राइट. तो अब आप देख सकते हैं कि जो जर्मिनल एपिथेलियम है, इन सेल्स के अंदर कौन सा सेल डिवीजन चल रहा है? मियोसिस. वो आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा. इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब मैं आपको स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस समझाऊंगी. लेकिन यहाँ जो दिखाई दे रहा है वो समझ लीजिए. यहाँ जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स दिखाई दे रहे हैं. ये सेल्स मियोसिस अंडरगो करके बहुत सारा सीक्वेंस सेल्स का बनाते हैं. सबसे पहले जो इनसे सेल्स बनते हैं, दीज आर स्पर्मेटोगोनिया. ठीक है, देखिए यहाँ डिटेल में दिखाया हुआ है. ये जर्मिनल एपिथेलियम है. जर्मिनल एपिथेलियम में मियोसिस हुआ. सबसे पहले जो सेल बने स्पर्मेटोगोनिया. स्पर्मेटोगोनिया के बाद जर्मिनल एपिथेलियम के बाद स्पर्मेटोगोनिया जो है और वो भी डिप्लॉयड ही होते हैं, उनमें अभी मियोसिस नहीं हुआ है. राइट. स्पर्मेटोगोनिया के बाद बनते हैं स्पर्मेटोसाइट. ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी डिप्लॉयड ही होते हैं. उसके बाद मियोसिस होता है. ठीक है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, फिर स्पर्मेटिड्स बनते हैं. ये हैप्लॉइड है. राइट. तो जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स डिप्लॉयड है, स्पर्मेटोगोनिया भी डिप्लॉयड है, लेकिन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है वो हैप्लॉइड हो जाते हैं. फिर स्पर्मेटिड्स भी हैप्लॉइड होते हैं, स्पर्मेटोजोआ भी हैप्लॉइड होते हैं. राइट. तो ये सीक्वेंस क्या है इनका? फिर जर्मिनल एपिथेलियम से बने स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स बने, स्पर्मेटिड्स के बाद स्पर्मेटोजोआ बने. ये सारा स्पर्मेटोजोआ फॉर्मेशन का प्रोसेस कहाँ चल रहा है? इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. कहाँ है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल? ये है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. इसी का ट्रांसफर सेक्शन आपने देखा ये. राइट. और एक बार ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बन जाती है, इसमें स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं, तो दे आर कैरिड टू रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडमिस, vas deferens. Vas deferens carries it to the common ejaculatory duct and they are given out from the body. Okay, so after this, next we come to structure of seminiferous tubule. अभी हम ये पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको थोड़ा सा और दोबारा बता दूं. हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है उसके अंदर it is on its inside by two types of cells. It is lined called male germ cells, spermatogonia. ठीक है, आप ये देख सकते हैं. ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जर्मिनल एपिथेलियम, ये वाला. ठीक है. और जर्मिनल एपिथेलियम में जब सेल डिवीजन होती है तो सबसे पहले क्या बनते हैं? पहली स्टेज कौन सी बनती है स्पर्मेटोजेनेसिस में? स्पर्मेटोगोनियम. स्पर्मेटोगोनियम के बाद बने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद बने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर बने स्पर्मेटिड और फाइनली बने स्पर्मेटोजोआ. आप देख सकते हैं स्पर्मेटोजोआ एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें ये टेल डेवलप हो गई है. उसका एक डिस्टिंक्ट हेड है, टेल है. यही इसको मूवमेंट करने में हेल्प करता है. और ये स्पर्मेटोजोआ बनने के बाद ये तेजी से मूवमेंट करते हुए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को छोड़ के रेटिटेस्टिस में चलते हैं. रेटिटेस्टिस के बाद ये वासा एफ्रेंशिया में जाते हैं, वहां से एपिडिडमिस, वहां से वास डिफरेंस, फाइनली कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट से दे आर गिवन आउट, दे आर इजैकुलेटेड आउट. ओके. तो अब इसमें मैंने आपको बताए थे सर्टोली सेल्स. ठीक है, ये सर्टोली सेल्स है, पिरामिड शेप सेल्स होते हैं, बड़े क्लियर थे लास्ट डायग्राम में. ये देखिए सर्टोली सेल्स. अब ये सर्टोली सेल्स के अलावा टेस्टिस में एक और टाइप के सेल्स होते हैं. देख रहे हैं आप, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये दूसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये तीसरी है, ये चौथी है. और इनके इन बिटवीन यहाँ क्या है? ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल टिश्यू है. इंटरस्टिशियल टिश्यू में प्रेजेंट होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड और उसमें प्रेजेंट होते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स. देख रहे हैं आप, ये दीज ऑल आर इंटरस्टिशियल सेल्स. इंटरस्टिशियल सेल्स मतलब जो इंटरस्टिशियल टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं सेल्स. ठीक है. अब ये इंटरस्टिशियल सेल्स का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड लेडिग सेल्स. क्या नाम है? लेडिग, LEYDIG, लेडिग सेल्स. और इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम भी है. ये लेडिग सेल्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मेल एंड्रोजन हार्मोन को सिक्रीट करते हैं. मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, इट इज मैन्युफैक्चर्ड, इट इज सिक्रेटेड बाय दीज इंटरस्टिशियल सेल्स आल्सो कॉल्ड लेडिग सेल्स. तो दो सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन टेस्टिस में. पहले तो है सर्टोली सेल्स, पिरामिड शेप्ड होते हैं एंड दे आर प्रेजेंट इन द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के विद इन होते हैं, अंदर प्रेजेंट होते हैं. और काम क्या है? नरिशमेंट प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना. दे आर फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दे प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ. दूसरे टाइप के सेल है लेडिग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स. ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर प्रेजेंट है. They are present between the seminiferous tubules in the interstitial tissue and their job is to form the male sex hormone, that is testosterone. Right? Okay, so after this we come to
the pathway for the passage of sperms. Many a times this question is asked in the board exam. बहुत बार पूछा जा चुका है. अब देखिए यहाँ पर एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में मैंने पाथवे शो किया है. ठीक है, अभी पाथवे में आप देख सकते हैं किस तरह से जो स्पर्म्स हैं वो मूवमेंट करते हैं, किस तरह से वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रोड्यूस होने के बाद फाइनली यूरेथ्रा या कॉमन एजैकुलेटरी डक्ट तक पहुंचते हैं. ओके, तो अब इसके लिए पाथवे हम देखेंगे. सबसे पहले we can see seminiferous tubules where the sperms are formed. Okay, after the seminiferous tubules they are given to retitestis. retitestis के बाद अब वो पहुंचे वासा एफ्रेंशिया. वासा एफ्रेंशिया के बाद head of epididymis, then the body of epididymis, tail of epididymis, वो सब यहाँ नहीं दिखाया हुआ. ठीक है, and finally from the tail of epididymis they move to vas deferens. Okay, vas deferens के बाद they move to the ampulla. vas deferens में एक छोटा सा sac like structure होता है ampulla, जो temporarily sperms को store करता है before they are given out in the ejaculatory duct. तो उसके बाद ampulla में गया, ampulla में जाने के बाद ejaculatory duct. ठीक है, and they are given out from the urethra, right? So after this pathway for the passage of sperms, we come to the male accessory ducts. ये भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. एक बार फिर से देख लेते हैं कि इनका क्या सीक्वेंस है. The male sex accessory ducts include retitestis, vasa efferentia, epididymis, and vas deferens. Okay. Seminiferous tubules of the testis open into vasa efferentia through retitestis. फिर से यहाँ देखते हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से जो स्पर्म्स हैं रेटिटेस्टिस में पास होते हैं. रेटिटेस्टिस से जाते हैं ये छोटे छोटे वासा एफ्रेंशिया नाम के ट्यूब्स में. वासा एफ्रेंशिया से जाते हैं ये एपिडिडमिस के हेड में, फिर बॉडी में, फिर वासा एपिडिडमिस के टेल में. टेल से दे आर गिवन टू द वासा डिफरेंशिया या वास डिफरेंस. वास डिफरेंस कैरीज द स्पर्म्स टू द कॉमन एजैकुलेटरी डक्ट. Okay, now the external genitalia. External genitalia consists of penis. It is a male external genitalia. It is made up of special tissue that helps in erection. Now what is erection? It is a stimulation. The stimulation of the external genitalia, it is because of the special tissue. It is highly vascularized. उसमें blood की supply बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, so penis के erection जो है, it is because of the special tissue which forms it, and it also helps in insemination. Okay, it helps in depositing the male gametes in female reproductive tract. The enlarged end of the penis is called glans penis, and it is covered by a loose fold of skin called foreskin. So these are the external genitalia which we had already referred to in the diagram of male reproductive system. Now we come to the male accessory glands. अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने पढ़ लिया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले उसका चीफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या गोनाड्स, दैट इज टेस्टिस. टेस्टिस का एक पेयर है और वो एक पेयर जो है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है. इट इज सिचुएटेड इन द स्क्रोटम. ठीक है, और उसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया, राइट? फिर हमने स्टडी किए असेसरी डक्ट्स. टेस्टिस में जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हो रहा है, मेल गैमीट्स बन रहे हैं, वो मेल गैमीट्स या स्पर्मेटोजुआ टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से पास होके रेटिटेस्टिस में जाते हैं, रेटिटेस्टिस से वासा एफ्रेंशिया, वासा एफ्रेंशिया से वास डिफरेंस, वासा एफ्रेंशिया से एपिडिडमिस, एपिडिडमिस से वास डिफरेंस, फाइनली टू द कॉमन एजैकुलेटरी डक्ट एंड दे आर गिवन आउट. ओके, अब इसके बाद हमने एक्सटर्नल जेनिटेलिया को ब्रीफली स्टडी किया. अब आती है एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, दैट इज द मेल accessory glands. Now the male accessory glands, which all male accessory glands are there? First of all, what are accessory glands? accessory का मतलब क्या है? accessory का मतलब होता है additional. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन पार्ट तो टेस्टिस का है जो स्पर्म फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है, लेकिन उसको असिस्ट करने में कौन सी ग्लैंड्स हेल्प करती हैं, टेस्टिस को और कौन सी ग्लैंड्स अपना मेटाबॉलिज्म करने में असिस्ट करती हैं, वो कौन कौन सी है? दीज आर
फर्स्ट ऑफ ऑल पेयर्ड सेमिनल वेसिकल्स, हमने सारी ग्लैंड्स को डायग्राम में देखा था, ठीक है। अब एक बार फिर से मैं इनको रेफर करूंगी। पेयर्ड सेमिनल वेसिकल्स, इनकी लोकेशन कहाँ है? पोस्टीरियर इंफीरियर टू द यूरिनरी ब्लैडर, ओके। सो दे आर पोस्टीरियर इंफीरियर टू द यूरिनरी ब्लैडर, मतलब यूरिनरी ब्लैडर के पीछे और उनके नीचे। सबसे पहले हम ये देखें कि ये कहाँ प्रेजेंट है। ये देखिए सेमिनल वेसिकल, दे आर प्रेजेंट पोस्टीरियर इंफीरियर टू द यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर है और देखिए इसके इंफीरियर, इसके नीचे, ठीक है, इसके पीछे और इसके नीचे क्या प्रेजेंट है? सेमिनल वेसिकल्स, अ पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। सेमिनल वेसिकल्स के बाद नेक्स्ट